Good morning, students. Today we are going to start second part of acid, bases, and salts. And students, I'm expecting that you have seen the first part of the acid, bases, and salts properly. और अगर नहीं देखा है बेटा, then firstly go through the first part of acid, bases, and salts. So today we are going to start acid, bases, and salts. Second part, beta. In this part, we'll discuss the bases, then your alkalis, beta. Then we'll discuss the chemical properties of the bases. Then we will discuss the strong and weak bases, beta. Then we'll discuss the properties of the bases and properties of the acids. Means we will differentiate the properties of acid and bases. Then we'll discuss the role of water in the ionization of acids and bases. Then we'll discuss dilution of acids and bases, beta. Then in this part we'll also cover the indicators. So then at the last we'll discuss the applications of the neutralization and then pH scale we'll discuss, beta. Hope you'll enjoy the today's topic. So let's start with the bases, beta. बेसिस बेटा ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जिनका टेस्ट क्या रहता है, बीटर रहता है, और वो क्या रहते हैं, आपके सोप इन टच रहते हैं. उनको हम क्या कह सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कह सकते हैं, बेसिस. मीन्स द सब्सटेंसेस विद बीटर टेस्ट एंड soapy touch, they are regarded as bases. And the examples are sodium hydroxide is there and potassium hydroxide is there. And beta, both of these bases are strong bases, and they are your corrosive in nature. They can burn your skin, they can harm your body. Now students, what can be the modern definition of the base then? बेटा bases जो हैं, they are having your hydroxyl ions. तो मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या आपके हाइड्रोक्साइल आयन जो हैं रिलीज करते हैं इन द एक्वा सॉल्यूशंस. मीन जब हमने किसी बेस को पानी में डाला तो वो क्या देंगे बेटा, OH नेगेटिव आयंस देंगे. दे आर योर हाइड्रोक्साइल आयंस. सो वी कैन से a base may be defined as a substance capable of releasing one or more hydroxyl ions in aqueous solutions. For example, here NaOH को जब हमने सॉलिड NaOH की पैलेट्स ली बेटा और उनको क्या किया, पानी में डाला, तो ये क्या देगा, सोडियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइल आयन देगा. और दे आर योर एक्वस. AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस. एक्वस वर्ड इज फ्रॉम एक्वा विच मीन्स वाटर बेटा. तो जब हमने NaOH को पानी में डाला तो क्या दे रहा है, सोडियम आयन दे रहा है, एक्वस सोडियम आयंस दे रहा है और हाइड्रोक्साइल एक्वस आयंस दे रहा है बेटा. सिमिलरली बेटा KOH that is going to give you in water K positive and OH negative ions. So beta, since these substances NaOH and KOH, they are giving you hydroxyl ions in water, so we can say they are your bases. They are your bases. Now beta, next is your alkalis. बेटा अगर हम ऐसे बेसिस जिनको हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, विच आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सेड टू बी अल्कालिस. क्या कहते हैं उनको, हम अल्कालिस कहते हैं. मीन्स वाटर सॉल्युबल बेसिस, दे आर कॉल्ड अल्कालिस. अभी जो भी हमने एग्जांपल किया बेटा NaOH और KOH का, क्लियर, वो क्या हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी अल्कालिस. सो
Again I'm repeating beta, alkalis are the water soluble bases. For example, sodium hydroxide and potassium hydroxide. Since these are soluble in water, so we can say that these are the alkalis. Now let's take some typical bases beta along with their chemical formula and the uses. So I have written these in tabular form here. Let's say sodium hydroxide is there beta, that is its commercial name is caustic soda beta, and chemical formula is your NaOH. Clear? And it is used in the manufacturing of soap beta, paper, pulp, rayon and refining of the petroleum में इसका यूज रहता है बेटा. Then your potassium hydroxide, that is also known as caustic potash, means its commercial name is caustic potash and chemical formula is your KOH, potassium hydroxide that is. Then its use is in alkaline storage batteries. जो अभी आपकी अल्कलाइन आपकी रहती है स्टोरेज बैटरीज बेटा, उनमें हम इसका यूज़ करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का. और वी कैन यूज़ दिस ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एट्सेट्रा एंड ऑब्जर्विंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी हम इसका यूज़ करते हैं बेटा. सो देन योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज योर स्लेक्ड लाइम, that is called your slaked lime beta, that is your calcium hydroxide, and that is used in the manufacture of bleaching powder, you know, calcium oxychloride CaOCl2, and that is used in you can say that is also used in the softening of your hard water. Then your magnesium hydroxide beta, that is a milk of magnesia, MgOH whole twice beta, that is a magnesium hydroxide, that is used as an antacid. मीन्स जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है किसी को भी बेटा, तो यू नो वी टेक द दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो दैट बिहेव्स एज अ, दैट इज कैन बी यूज्ड एज एन एंटासिड. एग्जैक्टली, एंटासिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस रिलीज ऑफ HCl इन द स्टमक. मतलब जब HCl की एक्सेस क्रिएशन होती है बेटा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक योर एंटासिड्स. सो वन सच एंटासिड इज योर दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेटा, दैट इज योर AlOH whole thrice beta, that is AlOH thrice beta. Then it is used as a foaming agent in the fire extinguishers, and again it can also be used as an antacid beta. Then your this one is ammonium hydroxide beta, NH4OH beta, that is used in removing the grease stains beta from clothes. जब आपकी stains रहती हैं आपकी grease की बेटा, तो उनको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं. एंड दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग द विंडो पेन्स एट्सेट्रा. विंडो पेन्स को मतलब क्लीन करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं बेटा. सो होप दिस इज क्लियर बेटा. सो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस. नाउ बेटा, व्हाट इज द एक्शन विद द मेटल्स. मैंने बात कही थी बेटा एसिड्स में एक्टिव मेटल्स की. एक्टिव मेटल्स क्या होती हैं, विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहती हैं. दे आर सेड टू बी एक्टिव मेटल्स बेटा. वहाँ एसिड्स में क्या कर रहे थे आपकी, जब हम एक्टिव मेटल्स यूज़ कर रहे थे, दे वर इवॉल्विंग योर हाइड्रोजन गैस. सो यहाँ भी क्या होगा बेटा, द मेटल जो भी एक्टिव मेटल्स हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, लाइक यू कैन से जिंक इज देयर, टिन इज देयर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा, जो हैं दे रिएक्ट विद योर स्ट्रॉन्ग एल्कालीज लाइक NaOH एंड योर KOH. और वो क्या इवॉल्व करती हैं, हाइड्रोजन गैस. जिस तरह आपके एसिड से भी ये मेटल क्या करती थी, हाइड्रोजन इवॉल्व करती थी. इज दैट क्लियर? सो जस्ट सी हियर, in this test tube we have taken the zinc granules. Is that clear? And then we add the dilute sulfuric acid in this beta. What will happen? What will be the action of zinc with this you can say dilute sulfuric acid, that will evolve the hydrogen gas. So this delivery tube, we can collect this hydrogen gas over here. Let's say here this is a soapy solution, soap solution beta. Clear? So when hydrogen gas will pass into this one, you know, then what will happen, that will form the soap bubbles. Soap bubbles
सो अगर हम क्या करेंगे इसको बेटा, इसके करीब, इन सोप बबल्स के करीब अगर हम क्या करेंगे, कैंडल लाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, दिस बबल्स विल बर्न विद द क्या, पॉपअप साउंड. इज दैट क्लियर? सो मीन्स दिस इज हाइड्रोजन गैस विच इज बर्निंग विद योर पॉपअप साउंड. सो बेटा नाउ रिएक्शंस बेटा इनके कैसे रहेंगे. मान लिया जिंक, जिंक क्या दे रहा है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, और क्या दे रहा है यहाँ, सोडियम जिंकेट. व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू, सोडियम जिंकेट. इज दैट क्लियर? एंड योर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. अब देखिए अभी मैंने ये एसिड का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, ठीक है. तो एसिड्स भी आपके क्या कर रहे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आपका जिंक रिएक्ट कर रहा है, इट इज गोइंग टू गिव यू द हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली हियर दिस जिंक विद NaOH इज गिविंग यू हाइड्रोजन गैस. तो बेटा सेम हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व विद द बेस इवन. इज दैट क्लियर? होप दिस इज क्लियर. नाउ सोडियम जिंकेट बेटा, यू नो द फॉर्मूलाज आपको याद नहीं करने, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब मैं इसका एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूलाज, और आपने 9th क्लास में भी ये किया होगा. उस बेस पे मैं आपको अगर बताऊं, तो आपका सोडियम का चार्ज होता है बेटा +1, और जिंकेट जो है दैट इज ZnO2, एंड उसके आपका सुपरस्क्रिप्ट क्या लिखेंगे हम, 2 नेगेटिव. तो बेटा इसका होगा Na +1, मतलब Na का जो आपका चार्ज है दैट इज +1. तो एज ए सुपरस्क्रिप्ट हम लिखेंगे Na +1. सो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई दीज चार्जेस, ठीक है. तो अब फॉर्मूला क्या होता है, ZnO2 का 2 नेगेटिव था, दैट्स वाई NO हो गया 2 बेटा, और आपका Na का था +1, तो ये आपका 1 ही रहा, दैट इज ZnO2. इज देख ले, तो दैट्स व्हाट द फॉर्मूला इज योर Na2ZnO2. नाउ सिमिलरली बेटा टिन, टिन भी आपका क्या कर रहा है, although it's so less reactive metal as compared to that of zinc. Clear? टिन क्या कर रहा है बेटा NaOH में, that is giving you the sodium stenite, Na2SnO2. Is that clear? And your H2 a gas is evolving over here. So we can say just like your this hydrogen gas is evolved from the acids बेटा. यहाँ acid का एक मैंने ये picture दे रखी है कि आपका hydrogen gas is evolved from the sulfuric acid, dilute sulfuric acid. Similarly your hydrogen gas is evolved here from the bases also. और आई थिंक जब फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आपका सोडियम मेटल जो है दैट इज सो रिएक्टिव दैट कैन इवॉल्व द हाइड्रोजन इवन फ्रॉम द वाटर. ओके बेटा, नाउ हियर एल्यूमिनियम व्हेन इट इज पुट इन द NaOH बेटा, ठीक है, एंड वाटर इज देयर, लेट्स से ये क्या दे रहा है आपका, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2. इज दैट क्लियर? एंड योर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड ओवर हियर. इज दैट क्लियर? और बेटा ये जो यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम के आगे 2 है, NaOH के आगे 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है. दीज आर योर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. Clear? These are your stoichiometric coefficients. Is that clear? It means 2 moles of aluminium are reacting with your 2 moles of your NaOH, and 2 moles of water are there to give you the 2 moles of your sodium meta-aluminate NaAlO2, and your 3 moles of hydrogen gas is evolved over here. ठीक है, इसका भी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है, बट यू हैव स्टडीड बेटा. क्लियर? अगर मैं ये मान के चलूँ कि यू हैव स्टडीड दैट इन द 10th class as well as I think and your 9th class also. So बेटा next जो है आपका that is your action with the non-metallic oxides. Okay, जो आपके non-metallic oxides हैं like you know carbon dioxide is there, sulfur dioxide is there. Clear? So ये क्या हैं? These are the oxides of your non-metals. तो हम कह सकते हैं कि बेटा जो ये आपके एसिड्स हैं they react with the जैसे आपके एसिड्स, जैसे हमने पिछले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया होगा बेटा फर्स्ट पार्ट में, कि एसिड जो है दे रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड्स. देखिए सिमिलरली योर बेसिस आल्सो रिएक्ट विद द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर. क्लियर? और जो आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं जनरली यू कैन से दे आर योर बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वेयर एज जो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं बेटा दे आर हैविंग योर एसिडिक नेचर. इज दैट क्लियर? सो बेटा अगर मेटल ऑक्साइड क्या है, इफ दे आर बेसिक इन नेचर सो दे विल रिएक्ट विद द एसिड. इज दैट क्लियर? एंड दे विल गिव यू व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर. एंड इफ आई एम सेइंग दैट नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर योर एसिडिक इन नेचर, सो दे विल रिएक्ट विद द बेसिस. इज दैट क्लियर?
So beta, let's say here NaOH is there. When we are reacting it with your carbon dioxide, clear, या aqueous solution के through aqueous solution of your sodium hydroxide के through जब हम carbon dioxide pass कर रहे हैं, what it is going to give you? That is giving you this sodium carbonate. Is that clear? And water is getting formed. So what is this beta? That is salt and water is getting formed. So some sort of your neutralization is taking place, you can say. Is that clear? So beta, again कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जब हमने क्या किया, आपके सल्फर डाइऑक्साइड को पास किया बेटा, दैट इज गिविंग यू कैल्शियम सल्फाइड एंड योर दिस वाटर. सो मीन्स सॉल्ट एंड वाटर इज गेटिंग फॉर्म्ड. सिमिलरली बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू? दैट इज गोइंग टू गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. सो यू नो बेटा, दिस इज ऑल्सो द टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो आपका रिएक्शन है थर्ड वन बेटा, क्लियर, आपका दैट इज ऑल्सो द टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यू नो, जब हम क्या करेंगे, व्हेन विल पास द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जब हम क्या करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, तो इट विल टर्न द सॉल्यूशन मिल्की. और जो मिल्कीनेस अपीयर होगी बेटा, वो किसकी वजह से होगी? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट. ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से आपकी मिल्कीनेस अपीयर होगी बेटा. क्लियर? व्हेन विल पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइम. इज दैट क्लियर? Hope this is clear beta. That is the test for the carbon dioxide you have. So students, next is strong and weak bases. You know students, we can classify bases into strong and weak bases on the basis of their ionization in water. ऐसे bases beta which are completely ionized, means ionization is 100%. Means all the molecules are going to dissociate into the ions. They are your strong bases. For example, sodium hydroxide and potassium hydroxide, they are your strong bases. Now here, this sodium hydroxide in water is giving you aqueous sodium ion and the aqueous hydroxyl ion beta. Similarly, potassium hydroxide, that is in water, giving you aqueous potassium ions and your aqueous hydroxyl ions. And you know, ये दोनों के दोनों bases बेटा, NaOH as well as KOH, they are deliquescent in nature. Deliquescent means they absorb moisture from air and get converted into liquids, or either we can say they gets liquefied beta. Now weak bases beta, ऐसे bases which are not completely ionized beta, only some of the molecules are going to ionize or dissociate into the ions beta. They are called your weak bases. So bases that are partially ionized on dissolving in water, we can say they are your weak bases. For example, calcium hydroxide is there and ammonium hydroxide is there. Okay students, next is conducting nature of acid and base solutions. Now this picture is showing the conducting nature of the acid and base solutions. Is that clear? Here in this beaker we have taken the dilute HCl solution beta, okay, and 2 iron nails are placed on this rubber cork, and these 2 iron nails are connected to the 2 terminals of the battery. Is that clear? Then one bulb is attached over here, one switch is there. When we will switch on this bulb, what will happen? This bulb will start glowing. Is that clear? It means the current is flowing through the solution. Is that clear? The glowing of this bulb is showing that some current is flowing through the solution, and even this bulb will glow if we will take NaOH in place of your this dilute HCl solution beta. अगर हम dilute NaOH solution भी लेते हैं, even then the bulb will glow over here, and that is also showing that you know this NaOH solution जो है आपका, that is also good conductor of your electricity. So that way we can say कि आपके जो acid and base solutions हैं बेटा, they are your conducting in nature. Clear? सो एसिड्स हमने पहले कहा था कि बेटा कौन से सब्सटेंसेस होते हैं विच कंटेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, और यही हाइड्रोजन एटम जो हैं दे आर रिलीज्ड एज योर H पॉजिटिव आयंस इन द वाटर,
एसिड जो है H एटम्स को इन वाटर जो है रिलीज करता है एज H पॉजिटिव आयंस बेटा. एंड वेयर एज बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स. और बेसिस क्या करेंगे बेटा, दे विल रिलीज दीज हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स इन वाटर एज OH नेगेटिव आयंस बेटा. क्लियर. और सिंस द आयंस आर द कैरियर ऑफ द चार्ज बेटा, therefore the aqueous solution of both acid and bases are the conductors of your electricity. Hope this is clear beta. Or always remember beta, ions in the liquid state in the solution, they are good conductor of your, yeah, they are conducting in nature, you can say they are the conductors of electricity in the liquid state, we can say. So next is beta properties of the bases. Okay beta, as you know bases are bitter in taste, so bases are bitter in taste, that is the first property beta. Then next is bases जो हैं आपके बेटा वो क्या करते हैं, दे चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर्स. फॉर एग्जाम्पल जो आपका रेड लिटमस है उसको वो क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे. फिनॉल्थैलिन को क्या कर देंगे बेटा, कलरलेस टू पिंक कर देंगे. इज दैट क्लियर. सो ये क्या है आपका, दैट इज मीन्स दे आर गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ द indicators and which we'll discuss later on in this part in detail beta. Then next is they show the electrolytic conductivity in the aqueous solution that we have just discussed beta. और जो आपका बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बेटा वो क्या कर जाती हैं, दे डिसअपियर when they react with the acid because neutralization takes place बेटा, क्योंकि वहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है. ओके, नो डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट्स बाय द बेसिस, मतलब बेसिस जो है बेटा आपके कार्बोनेट सॉल्ट्स को जो है डिकम्पोज नहीं करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स. यू नो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, वी हैव डिस्कस्ड. एसिड्स चेंज कलर ऑफ द इंडिकेटर, लेकिन बेटा यहाँ क्या होगा, लिटमस ब्लू लिटमस जो है उसको रेड कर देता है, जबकि बेसिस में क्या था, रेड लिटमस को ब्लू करता था. और फिनॉल्थैलिन जो है बेटा दैट रिमेन्स कलरलेस, दैट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज. ओके, फिनॉल्थैलिन का कलर चेंज नहीं होगा. इज दैट क्लियर. इन द एसिड, इज दैट क्लियर, मीन्स एसिड्स आर नॉट गोइंग टू चेंज द कलर. सो देन एसिड्स शो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इन द aqueous solution that is same as that of the bases. आपके bases भी आपके show करते हैं बेटा electrolytic conductivity in aqueous solutions. And acidic property जो है that disappear बेटा when react with the bases, means neutralization take place, that is same as that of the bases बेटा. Then acids decompose carbonate and bicarbonate salts, जबकि आपके bases जो हैं they do not decompose the carbonate and bicarbonates बेटा. So then comes your role of water in ionization of your acids and your bases. So here we will discuss what is the role in the ionization of acid and bases beta. So now some compounds जो हैं they can act as acid or bases. ठीक है, कब करेंगे बेटा, only in the presence of the water बेटा. ठीक है, it means aqueous solution जो हैं they can act, aqueous solution of some compound they can act as acid and bases. Is that clear? But only in the aqueous state beta, means in liquid state you can say. So in the absence of water, you know, they are said to be anhydrous acid or bases. और जो water है बेटा that helps in ionization of the acid or base by separating the ion. मीन्स वाटर क्या काम करता है बेटा, आयनाइजेशन का काम करता है. मीन्स वाटर जो है दैट हेल्प्स रादर इन आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेसिस. ठीक है, और ये क्या करता है, दो आयंस को सेपरेट करता है, एसिड और बेसिस के आयंस को भी सेपरेट करता है. मीन्स वाटर वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस. जो पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा उसको ये कम कर देता है, क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज़ वेरी वेरी हाई बेटा. और कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज आयंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस. इज दैट क्लियर. सो बेटा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है, मतलब वाटर वीक कर देता है. तभी तो क्या होते हैं, आयंस जो हैं दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और बेटा ये जो मीन्स जब ये वीक कर रहा है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो क्या हो रहा है, जो एसिड है और बेस है वो क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू डिसोशिएट. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज योर डिसोशिएशन. इज दैट क्लियर. और दिस वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी कॉल्ड योर Arrhenius theory of acid and bases, which we will discuss
in the next chapter बेटा. So next is जो ड्राई स्टेट में जब आपके एसिड और बेसिस होते हैं बेटा, इज दे क्लियर. जैसे मान लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, क्लियर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बेटा ड्राई स्टेट में क्या कहलाता है बेटा, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस. ठीक है. एंड ये जो HCl गैस है बेटा दैट इज नॉट इन पोजिशन टू गिव द H पॉजिटिव आयन, मतलब ये H पॉजिटिव आयन देने की पोजीशन में नहीं होती. इज दे क्लियर. देयरफॉर एसिडिक कैरेक्टर जो है दैट इज नॉट शोन इन दिस केस. ठीक है. तो ड्राई स्टेट में दे विल नॉट बिहेव एज एन एसिड बेटा, HCl विल नॉट बिहेव एज एन एसिड. इज दे क्लियर. सो बेटा नाउ हियर दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल बेटा, HOH. This is a structure of your this water. The band shaped structure is there, clear. Negative charge, partial negative charge is there on the oxygen and partial positive charge is on the this hydrogen बेटा. ओके बेटा, अब हम क्या करते हैं, अगर हम पास करते हैं HCl गैस थ्रू द वाटर. ठीक है. मान लिया वाटर को हमने वीकर में लिया और उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम HCl गैस को पास कर रहे हैं. देन व्हाट विल हैपन, जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, जैसे यहाँ बता रहा है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, दैट इज पोलर इन नेचर, हैविंग योर नेगेटिव एंड positive charge. They are having your two poles rather over here. Is that clear? That is your having one pole is this one and other is your this one, means they are your having your polar nature you can say. Is that clear? मतलब पोलर नेचर की वजह से डाइपोल बना रहा है बेटा. ठीक है. अब मान लिया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इनके एटम्स के ऊपर है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ है आपका, ऑक्सीजन के ऊपर है. ठीक है. नाउ अब जब वाटर जो है, मान लिया वाटर के थ्रू हमने HCl गैस को पास किया बेटा, इस देख ले, देन व्हाट विल हैपन, जो क्लोराइड आइन और H पॉजिटिव आइंस हैं दे विल इंटरेक्ट विद द वाटर, यू नो सो देन दे विल ट्राई टू फॉर्म some sort of envelope around the hydrogen atoms as well as the chlorine atom we can say, क्योंकि वो HCl is there, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन एटम के बीच साथ ये क्या बना देगा, मतलब एक एनवेलप सा बना देगा हाइड्रोजन एटम के अराउंड और क्लोरीन एटम के अराउंड. कौन, वाटर. इज दे क्लियर. और यही हेल्प, इसी तरह ये हेल्प करेगा वाटर इन आयंस को सेपरेट करने में बेटा. इज दे क्लियर. और जब ये इंटरेक्ट करेंगे ये इनके साथ, आयंस के साथ, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन के साथ वाटर, तो दे विल फॉर्म द हाइड्रेटेड आयन. Let's say now this is suppose one water molecule, this is another water molecule, this is another water molecule, this is another water molecule. Now here chloride is there, let's say chloride is there. क्लोराइड जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज बेटा आयन. तो आपका जो H जो है, H दैट इज हैविंग योर पॉजिटिव पार्ट, is there positive charge is there, so this positive charge will interact with the negative charge, so this interaction is there. Is they clear? और ये interaction क्या है बेटा, that is nothing but that is a hydration of this chloride ion by the water. so आपकी जो orientation होगी water की इस तरह होगी बेटा, तो means hydrogen atoms of water molecule will interact with the negatively charged ion, that is a chloride over here. Clear? Or this interaction of the ion, this ion, chloride ion with the water molecule is called hydration. Now this ion is hydrated ion. इस ion को हम क्या कहेंगे बेटा, hydrated ion. So similarly over here, यहाँ H positive ion का बेटा that is going to form the hydronium ion with water, क्योंकि H positive ion is going to form the hydronium ion in water. So now these ions are called hydrated ion, जैसे मैंने पहले कहा बेटा. अब सी हाइड्रोजन क्लोराइड जो है that is your HCl plus water is giving you H positive aqueous and your Cl negative aqueous, means your now these ions are your hydrated ions you can say. So beta अब these you can say electric current जो है that is carried out carried out throughout the solution by these ions only. मतलब यही ions हैं जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट को जो है, इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी करेंगे बेटा. एंड द सेम इज अप्लाइड टू द अदर एसिड एज वेल एज द बेसिस. मतलब जो भी दूसरे एसिड और बेसिस, हमने यहाँ एग्जांपल लिया बेटा किसका, HCl का, लेकिन दूसरे एसिड और बेसिस के साथ भी वाटर की इंटरेक्शन इसी तरह की होंगी. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज बेटा जो कंक्लूजन है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे. अब देखो एसिड्स जो है हमने क्या कहा कि H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं किसमें, एक्वा सॉल्यूशन में, और बेसिस क्या रिलीज करते हैं बेटा, OH नेगेटिव आयन इन द एक्वा सॉल्यूशंस. और
ये जो हाइड्रेशन है दैट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ द आयंस फ्रॉम द एसिड और बेसिस. इज देख लिया, हाइड्रेशन जो है दैट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ दीज आयंस फ्रॉम द एसिड और बेसिस. सो वी कैन से जो आपकी बेटा एसिड और बेसिस से इन आयंस को कौन लिबरेट कर सकता है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड bases. Okay, students, you know acid and bases are mostly water soluble. Is that clear? And we can dilute these acid and bases by the addition of water, beta. So with the addition of water, what will happen to the acid or base? The amount of acid or base per unit volume क्या करेगा बेटा आपका? Decrease करेगा. Is that clear? And we can say that dilution is going to occur. So beta, dilution of acid and base is nothing but that is the addition of water, is that clear, to the acid and water, and because of this the amount of acid or base per unit volume that is going to decrease, and this decrease in the amount of acid or base per unit volume is called dilution beta, and that will happen due to the addition of water. So hope this is clear beta. Again here we have written beta, the amount of acid or base decreases per unit volume upon the addition of water. Okay beta, next is ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस है बेटा दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. ओके, अ कंसंट्रेटेड एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड अगर हम लें, उसको क्या करें, उसमें वाटर डालें, इस देख लिया, और उसको डाइल्यूट, वो क्या होगा फिर डाइल्यूट होगा ना. लेकिन क्या हम एसिड में वाटर डालेंगे या वाटर में एसिड डालेंगे बेटा? ऑलवेज रिमेंबर बेटा, यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन व्हेन यू आर गोइंग टू डाइल्यूट योर एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स रादर. इस देख लिया, तो आपने क्या करना है बेटा, पानी को एसिड में नहीं डालना है, लेकिन एसिड को पानी में डालना, वो भी क्या, स्लोली. इस देख लिया, और कीप ऑन स्टरिंग व्हेन यू आर डिसॉल्विंग योर एसिड इन वाटर, कीप ऑन stirring that. Is that clear? Because you know the process of addition of you can say acid to the water, that is exothermic in nature. Lot of heat is produced beta. Is that clear? Otherwise अगर आप एसिड में पानी डालोगे, what will happen? That will flash out because of the release of enormous amount of energy beta. Is that clear? So अब यहाँ जैसे again I have written beta, acid should be added drop wise to the water taken in the container with constant stirring. So this precaution you have to take beta. Then next comes your indicators beta. Okay, indicators होते क्या है बेटा? बेसिकली ये क्या है, दे आर योर colored organic substances, ठीक है, and they are extracted from the different plants. उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिफरेंट प्लांट से बेटा. और ये जो इंडिकेटर्स हैं, इनको हम यूज करते हैं जस्ट टू इंडिकेट द नेचर ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूशन, चाहे वो क्या है, एसिडिक है, चाहे वो बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. और ये जो इंडिकेटर हैं, दे रिप्रेजेंट द चेंज इन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम एसिडिक टू द बेसिक और बेसिक टू एसिडिक, मीन्स वाइस वर्सा. Is that clear? And you know, we'll discuss the few examples of acid and base indicators over here. Now, first let's say litmus beta. You may have heard about your litmus. Clear? You know beta, जो litmus है, that is a purple dye. That is a purple dye which is extracted from lichen plant. ठीक है? And that belongs to a variety of thallophytic and autotrophic plant की एक variety को ये belong करता है बेटा litmus. और लिटमस जो है, ओके, अब ये क्या है बेटा, दैट इज अ लाइकन, यू कैन से अ लाइकन. लाइकन क्या होता है बेटा? दैट इज अ मीन्स सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई बेटा. इस देख लो, मीन्स लाइकन जो है दैट इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म दैट अराइजेस फ्रॉम एल्गी or cyanobacteria living among the filaments of multiple fungi. Means this is a एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई बेटा, ठीक है. एंड कैसी 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 मतलब इनका रिलेशन कैसा है बेटा? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है. इज दैट क्लियर? मीन्स दे आर हेल्पिंग ईच अदर. इज दैट क्लियर? दे आर हेल्पिंग ईच अदर फॉर देयर फूड. सो बेटा, नाउ हियर इज आई हैव गिवन वन लाइकन ओवर हियर. इज दैट क्लियर इन द पिक्चर? ओके, अब नो जो लिटमस है बेटा,
इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन द पेपर, मतलब हम इसको, ये नहीं है कि लिक्विड स्टेट में हम इसको यूज़ करें बेटा, हम इसको पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं. वी आर हैविंग इन द लैब डिफरेंट लिटमस पेपर्स बेटा, ब्लू एंड रेड लिटमस स्ट्रिप्स हमारे पास होती हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं जस्ट टू डिटेक्ट द एसिड और बेसिक बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस. सो बेटा नेक्स्ट जो है आपका टेस्ट मैंने यहाँ देने की कोशिश की है बेटा. सी हियर इन द पिक्चर, हियर दिस इज ऑफ रेड लिटमस स्ट्रिप इज देयर. ठीक है, लेट्स से व्हेन वी हैव पुट दिस रेड लिटमस स्ट्रिप इन द दिस सॉल्यूशन, लेट्स से, ठीक है, देन इट्स कलर इज टर्निंग blue. So it means this is base. This solution is basic in nature. So now let's say this is a blue strip beta we have taken. ठीक है, now when we put this blue strip, blue litmus in this solution, that is turning red. So it means this is a acid. So see beta, a blue litmus strip acquires red color when dipped in acid solution, as I have told you, and a red strip when dipped in base solution beta, it becomes blue. It becomes blue. Is that clear? So hope this is clear beta. Now next indicator, that is of phenolphthalein beta. ये भी एक क्या है आपका, फिनोल्थैलिन भी एक आपकी ऑर्गेनिक डाई है और दैट इज एसिडिक इन नेचर. इज दे क्लियर? सी बेटा, फिनोल्थैलिन अगर हमने मान लिया इस सॉल्यूशन में डाला, इट्स कलर इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज कलरलेस बेटा, देन इट मीन्स इट्स एसिड. और फिनोल्थैलिन को अगर हमने बेस में डाला, मान लिया NaOH में डाला, देन इट्स कलर विल चेंज टू पिंक. इज दे क्लियर? देन इट मीन्स इट इज ऑफ सम बेस. इज दे क्लियर? जैसे यहाँ एल्कली लिखी है बेटा, एल्कली क्या कहा था हमने शुरू में, दैट इज ऑफ वाटर सॉल्युबल बेस. सो बेटा फिनोल्थैलिन, जैसे पहले कहा मैंने बेटा कि इट इज़ एन ऑर्गेनिक डाई एंड एसिडिक इन नेचर. ठीक है, और इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन इट इज रिटर्मीन्स कलरलेस, लेकिन आपका इन बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है ये बेटा, इट टर्न्स पिंक. जो आपका सॉल्यूशन का कलर क्या कर देगा बेटा, बेसिक सॉल्यूशन मान लिया बेस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा इसका कलर टू पिंक. सो नेक्स्ट इज टर्मेरिक जूस. ओके स्टूडेंट्स, turmeric you have seen beta, its color is yellow. In neutral or acidic medium its color remains yellow, but in basic medium its color changes to reddish or deep brown beta. See, in the base this will be the color of the solution beta, that is deep brown or reddish brown color will be there, or in neutral or acidic medium its color will remain yellow. And then next is your beta red cabbage juice. This is red cabbage juice beta over here. Okay, so this red cabbage juice that also behaves as an indicator. You know, its color is purple. See here in between these two red and green के बीच में देखें बेटा, this is the color of your this red cabbage juice, somewhat purple is there in the neutral medium beta. So but it turns red. Now see this one, it turns red or pink you can say in the acidic medium, whereas in basic medium it turns your green. It turns your green in the basic or you can say alkaline medium. Okay, next is your methyl orange. Here methyl orange is there. Is that clear? That is, methyl orange is again a color dye beta. Its color is somewhat orange. Is that clear? And is basic in nature बेटा. इसका नेचर क्या रहता है, बेसिक इन नेचर रहती है बेटा. और एसिडिक मीडियम में जो है इसका कलर क्या हो जाता है बेटा, दैट बिकम समवॉट रेड. लेकिन बेटा जो बेसिक मीडियम में क्या रहेगा, इसका कलर विल नॉट चेंज, मीन्स इट विल रिमेन अनचेंज्ड इन द बेसिक मीडियम बेटा. ठीक है, बेसिक और यू कैन से न्यूट्रल मीडियम में इट विल रिमेन अनचेंज्ड. सो नेक्स्ट इज बेटा इंडिकेटर्स हमने समराइज किए हैं अब. लेट्स से हाउ वी हैव समराइज्ड. यहाँ HCl या HCl में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को क्या होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन कैसे टर्न करेगा, फिनोल्फथैलिन कैसे चेंज करेगा, मिथाइल ऑरेंज कैसे चेंज करेगा, विच वी हैव डिस्कस्ड. होप यू विल go through this one and will try to understand. Is that clear? So next is your beta neutralization. You know beta neutralization जो है that is the reaction between the acid or base. Is that clear? So we can say neutralization may be defined as a reaction between
acid and base present in aqueous solution to form salt and water. मीन्स आपका जैसे HCl है यहाँ बेटा, बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करके आपको क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है. इज दे क्लियर? एंड दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर. सो नेक्स्ट बेटा, न्यूट्रलाइजेशन जो है दैट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर H पॉजिटिव आयन of the acid with the OH negative ion of the base. That's why what it is going to give us, water. So see, H positive, Cl negative from the acids and Na positive or OH negative from the base, and that is going to give you Na positive or Cl negative and then your water. So H positive plus OH negative, that is giving you water beta. So hope beta this is clear. So here again I have tried to represent this neutralization by this picture again. So beta that I have discussed, hope you will go through this. So next is ओके बेटा, अगर हमारा क्या है, अगर दोनों ही एसिड और बेस हमारे स्ट्रॉन्ग हैं तो जो वैल्यू है हीट एनर्जी जो भी इवॉल्व होगी उसकी जो भी वैल्यू है, मीन्स जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व है दैट विल ऑल्सो रिमेन सेम बेटा. ठीक है, और जब तक आप क्या करें, एसिड और बेस को चेंज ना करें. मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस विल गिव द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. इज दैट क्लियर? सो बेटा जैसे सपोज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH is a strong base, that is going to give this salt and water beta. Is that clear? So since these are the strong acid and bases, तो energy liberated will be always 57.1 किलो जूल. इज दे क्लियर? सो इतनी एनर्जी रिलीज होगी बेटा. लेकिन जब भी कोई भी एसिड और बेस इनमें से वीक है बेटा, तो एनर्जी रिलीज विल बी लेस देन दैट ऑफ योर दिस वन. इज दे क्लियर? दैट इज 57.1 किलो जूल से कम एनर्जी जो है लिबरेट होगी इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट हियर दैट इज एसिड और बेस इज वीक. So next beta, nitric acid and KOH beta, again these are strong acid and bases beta, again amount of energy released is going to be same. So this you have to remember beta. Now applications of the neutralization. Okay beta, बेटा जैसे आपको क्या है, कभी बी या आंट्स ने काटा होगा, दे रिलीज द फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन होती है स्किन में, इन्फ्लेमेशन रहती है बेटा. ठीक है, और आपका स्वेलअप कर जाता है. वो किसकी वजह से होता है? फॉर्मिक एसिड की वजह से. मीन्स जो स्टिंग ऑफ वी और आंट्स हैं वो क्या करती है बेटा, दैट कंटेन्स योर फॉर्मिक एसिड. तो इसका इफेक्ट को कम करने के लिए, क्लियर, फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, कोरोसिव है एंड पॉइजनस नेचर है इसकी बेटा, क्लियर. सो ये क्या करेगा, इसको हमने न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा किसके साथ? बेस के साथ. सो बेटा व्हेन विल रब मतलब दिस द प्लेस वेयर वी आर स्टिंग बाय द वी और आंट, जब हम उसको NaOH अप्लाई करेंगे वहाँ बेटा, डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, इज दैट क्लियर? तो व्हाट विल हैपन, जो इसका इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और वो क्यों होगा? बिकॉज फॉर्मिक की जो फॉर्मिक एसिड जो रिलीज करेगी उसको न्यूट्रल कर देगा वो NaOH. इज दैट क्लियर? सो इट मीन्स द चेंज दैट इज गोइंग टू चेंज द नेचर. ठीक है, और किसकी वजह से हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन की वजह से. इज दैट क्लियर? और बेटा ओल्ड एज में देखा होगा आपके जो लोग हैं या जनरली जो पीपल हैं, दे सफर ड्यू टू द एसिडिटी बेटा. ठीक है, मीन्स एक्सेस सिक्रीशन ऑफ HCl इज देयर. ठीक है, तो जब आपकी एक्सेस सिक्रीशन होती है HCl की, ठीक है, इन द स्टमक, तो दैट में लीड टू द अल्सर इवन. ठीक है, मीन्स दैट मे बी द कॉज ऑफ द अल्सर. इज दैट क्लियर? सो बेटा उस एक्सेस सिक्रीशन जो होती है HCl की, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक द सब्सटेंसेस विच आर सेड टू बी एंटासिड्स. और एंटासिड्स कौन से हैं? जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, दैट इज अ बेकिंग सोडा इज देयर. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज देयर, दैट इज सेड टू बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो डॉक्टर्स जो हैं बेटा प्रेस्क्राइब करते हैं आपको क्या, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज सेड टू बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ये सोडियम का बाइकार्बोनेट आपको बेटा प्रेस्क्राइब करते हैं. इज दैट क्लियर? सो ये क्या हैं, दे आर योर बेसिक इन नेचर. ठीक है, देन दे विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज द HCl so secreted in the stomach. क्लियर? जिसकी वजह से एसिडिटी से क्या होगा, रिलीफ मिलेगा बेटा. ओके, दूसरा बेटा कई बार क्या होता है, जो आपका सॉइल एसिडिक हो जाती है ड्यू टू द एसिडिक रेन. एसिड 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 रेन आपको पता है बेटा, एसिड रेन क्या करेगी, दैट विल इंक्रीज द एसिड इन द सॉइल बेटा. तो
अब उससे क्या होगा, आपकी सॉइल अगर एसिडिक होगी तो दैट विल इफेक्ट द मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ स्लेक्ट लाइम जो है उसमें ऐड कर देते हैं बेटा सॉइल में, सो एज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड्स इन द सॉइल, ठीक है। सो देन जैसे बास्प होती हैं बेटा, वो आपको काट दे, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, बास्प का जो स्टिंग है बेटा दैट कंटेन्स योर एल्कली, एल्कली मीन्स बेस, ठीक है, दैट अगेन प्रोड्यूस योर पॉइजनस इफेक्ट। और उसको हमने किससे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा बेटा, एसिड से। तो अगर हम वहाँ एसिटिक एसिड या वेनेगर का यूज़ करें तो दैट कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ योर दिस alkali, so present in the sting of the wasp बेटा। स्टिंग ऑफ वास्प में जो आपके क्या किया बेटा, एल्कली जो भी आपकी प्रोड्यूस की, जिस जो आपका पॉइजनस इफेक्ट कर रहा है, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन कर रहा है स्किन पे बेटा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे बेटा, वेनेगर। वेनेगर इज कंटेनिंग योर एसिटिक एसिड। सो बेटा अब मान लिया पीएच स्केल इज देयर। पीएच स्केल जो है दैट वाज डेवलप्ड बाय बेटा वन ऑफ द साइंटिस्ट सोरेनसन, ठीक है, एंड दैट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एक्चुअली इन द सॉल्यूशन। मतलब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन में, उसको मेजर करते हैं हम पीएच स्केल से। और वो किसने दिया था बेटा, सोरेनसन ने। किसने दिया था, सोरेनसन ने। तो पी हियर जो है बेटा इन द पीएच दैट स्टैंड्स फॉर पावर, जिसका मतलब क्या, पोटेंश। P stands for potential, or you can say potential in German meaning power. Is that clear? So on the pH scale we can measure the pH from 0 to 14. तो आपका pH scale में आपकी जो वैल्यू रहती है बेटा क्या रहती है, 0 to 14 रहती है, ठीक है। लोअर द वैल्यू ऑफ द pH, मोर इज द एसिडिक बिहेवियर। हायर द वैल्यू ऑफ pH, मोर इज द बेसिक नेचर। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, दैट हैव जस्ट डिस्कस्ड बेटा। सो अब मान लिया फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पीएच क्या होगी बेटा, 7 से कम रहेगी। क्या रहेगी आपकी, 7 से कम रहेगी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगी, ग्रेटर देन 7। और न्यूट्रल के लिए क्या रहेगी आपकी, 7, ठीक है। एंड देन बेटा पीएच जो है दैट इज नथिंग बट इट्स अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ योर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो अगर हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता है बेटा किसी भी एसिड की और बेसिस की बेटा, देन वी कैन फाइंड आउट द पीएच, ठीक है। रादर एसिड की बात करूं मैं बेटा यहाँ, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड में जितनी भी है दैट कैन गिव यू द वैल्यू ऑफ द पीएच ऑफ द दैट एसिड सॉल्यूशन। सो बेटा हियर इज द पीएच स्केल इज गिवन, सो ताकि आप बेटा एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि पीएच कितनी है ऑफ डिफरेंट दीज सब्सटेंसेस बेटा। जैसे लेमन जूस की पीएच कितनी है, 2 है। गैस्ट्रिक एसिड की कितनी है, 1 है। मीन्स 1 है तो मीन्स दैट इज़ हाईली एसिडिक बेटा। एप्पल जूस की कितनी है, 3 है। टोमेटो जूस की कितनी है, 4 है, लाइक दैट। मिल्क की कितनी है, पीएच 6 है। प्योर वाटर की कितनी है बेटा, 7 है। एग की कितनी है। बेकिंग सोडा दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट बेटा, दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, दैट इज़ 9 इज़ देयर। हैंड सोप की कितनी है, 10 इज़ देयर। अमोनिया सॉल्यूशन की बेटा 11। तो मीन्स जैसे जैसे बेसिक करेक्टर बढ़ता जा रहा है बेटा पीएच इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके बेटा, नेक्स्ट यहाँ भी बेटा यहाँ दिया है मैंने एक चार्ट, इसको याद करें, स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। मतलब पीएच किसी की भी, प्योर वाटर की कितनी है, ब्लड की कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 7.36 टू 7.42 बेटा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की कितनी है, सी वाटर की कितनी है, दैट इज़ 9। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइम वाटर की कितनी है, 12 है। इज दैट क्लियर? सो बेटा इनको थोड़ा याद करें। यूरिन दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन अगेन दैट इज़ 4.5 टू 8 वेरी करती है इसकी बेटा, मैन टू मैन। इज दैट क्लियर? स्लाइवा की कितनी है, मीन्स इसको याद करें इन पीएच। ओके बेटा, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द पीएच इन आवर डेली लाइफ। यू नो बेटा पीएच जो है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in our body. So, first of all, pH in our digestive system. You know, since dilute hydrochloric acid is produced in our stomach, that helps in digestion of the food. However, excess release of this acid causes indigestion and leads to pain as well as irritation. The pH of the digestive system in the stomach, जो है आपका बेटा, that will fall due to the excess secretion of HCl. The excessive acid can be neutralized with the help of your antacids. Antacids are nothing but these are the just bases which are recommended by the doctors. These compounds are basic in nature, as I have told you, and doesn't have any side effect beta.
Some antacids like milk of magnesia is there. That is nothing but it's so insoluble magnesium hydroxide beta. Others, aluminum hydroxide is there, and sodium hydrogen carbonate is there. That is a sodium bicarbonate, means baking soda. और यही एंटासिड क्या करते हैं बेटा, आपकी जो पीएच को नॉर्मल लेके आते हैं. जो पीएच है बेटा ह्यूमन ब्लड की, दैट वेरीज बिटवीन 7.36 to 7.42. And this pH is maintained by soluble bicarbonates and carbonic acids present in the blood. And this mixture is called your buffer solution, or it is your buffer. Buffer क्या होते हैं बेटा? Buffer substances are those, buffer solutions are those which resist the change in pH upon the addition of your acid or bases. Now, role of pH in curing stings by the insects. जब insects काटते हैं तो they release, sometimes they release you can say acid, or some of them release your bases. Let's say bees or ants, when they sting, what happens? They release just methanoic acid. That is nothing but it's a formic acid, HCOH, or that cause lot of pain and irritation. And this can be cured by rubbing the जो affected area है, we can rub that with the soap, and soap is basic in nature, so that soap will neutralize the methanoic acid beta. Sodium hydroxide present in the soap neutralizes the acid injected in the body and thus brings the pH back to its original level, bringing the relief to the person who has been stung. जिसको काटा गया बेटा वो नॉर्मल फील करेगा. बिकॉज क्यों नॉर्मल फील करेगा? क्योंकि जो उसने मैथेनोइक एसिड रिलीज किया था उसको क्या किया, जो आपका सोप में NaOH है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है. उसी तरह बेटा बास्प्स होते हैं, जब वो काटते हैं बेटा तो दे रिलीज जस्ट द बेसिस. वो क्या करते हैं? बेस रिलीज करते हैं, एंड that can be neutralized by the application of your vinegar beta. Vinegar is an acid, that is ethanoic acid, CH3COOH, that is commonly called acetic acid. तो बाष्प आपके एल्कालीज जो है प्रोड्यूस करते हैं बेटा, एल्काली रिलीज करते हैं बेटा, सो दैट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द सम वीक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड. देन नेक्स्ट बेटा पीएच चेंज दैट लीड्स टू टूथ डिके. ओके बेटा, टूथ का जो सबसे बेटा आउटर मोस्ट कवरिंग जो है दैट इज कॉल्ड योर एनिमल, एंड इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. वी कैन से दैट इज नथिंग बट इट्स इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट, एंड इट इज क्वाइट हार्ड. मैंने जैसे कहा कि इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वाटर, बट एसिड अफेक्ट देम अ लॉट. However, when the pH of the mouth falls below 5.5, the animal gets corroded. ये खराब हो जाता है बेटा, corrode करना शुरू कर जाता है below pH 5.5. So water will have a direct access to the roots and decay of the teeth will occur. अब बेटा जब ये corrosion हो गया, इसका corrode हो गया, तो what will happen? Roots में क्या चला जाएगा? पानी चला जाएगा. Is that clear? सो इसका डिके जो है टीथ का क्या हो गया? शुरू हो गया. ओके बेटा, अब पीएच ये आपकी जो है माउथ में कैसे डिक्रीज करती है? जो बैक्टीरिया है विच आर प्रेजेंट इन द माउथ ब्रेक डाउन द शुगर दैट वी ईट इन वन और अदर फॉर्म, प्रोड्यूस द एसिड्स. वन सच एसिड दैट इज सपोज लैक्टिक एसिड इज देयर. अब जब आपके ये एसिड प्रोड्यूस होंगे बेटा, दैट विल डिक्रीज द पीएच इन द माउथ. इज दैट क्लियर? सो पीएच चेंज होगी तो क्या होगा? टूथ डिके होगा. दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल बेटा टू अवॉइड ईटिंग शुगरी foods and also to keep the mouth clean so that sugar and food particles may not be present. Otherwise, they will be decayed by the bacteria present in our mouth and they will produce the acids. Acids will decrease the pH and due to which animal decay will start. The toothpaste contain in them some basic ingredients beta, and they helps in neutralizing the effect of the acids and also increase the pH of the mouth. Now next is soil pH and plant growth beta. Beta,
जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स हैं बेटा इन अ पार्टिकुलर सॉइल इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट्स पीएच बेटा, वो भी आपकी क्या है पीएच पे ऊपर डिपेंड करती है। एक्चुअली डिफरेंट प्लांट्स प्रेफर डिफरेंट पीएच रेंज फॉर देयर ग्रोथ। हर एक प्लांट्स के लिए अलग अलग पीएच रेंज चाहिए बेटा ग्रोथ के लिए। सो it is very important to provide the soil with proper pH for their healthy growth. The soils with high iron minerals or with vegetation tend to become acidic. जहाँ आयरन मिनरल्स जो है बेटा सॉइल में ज़्यादा हैं और वेजिटेशन जो है ज़्यादा है, दैट विल टेंड टू बिकम मोर एसिडिक, जो वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। एंड दिस सॉइल पीएच कैन रीच एज लो एज 4, और एसिडिक इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द लाइमिंग द सॉइल। इज दैट क्लियर? और लाइमिंग ऑफ सॉइल कैसे करेंगे हम बेटा? बाय एडिंग द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम उसमें डालेंगे, सो दैट इज सेड टू बी लाइमिंग ऑफ द सॉइल। These are all basic in nature and have the neutralizing effect. तो बेटा जब इसकी pH कम होगी तो जब हम उसमें इसकी लाइमिंग ऑफ सॉइल करेंगे बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, तो वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा उसको, एसिडिक बिहेवियर को। ओके बेटा, उसी तरह द सॉइल विद एक्सेस ऑफ द लाइमस्टोन और चॉक इज यूजुअली एल्कलाइन। जहां लाइमस्टोन ज्यादा है, चॉक ज्यादा है, इज दैट क्लियर? दैट इज alkaline in nature. Sometimes its pH reaches as high as 8.3 and is quite harmful for the plants. और ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत हार्मफुल है बेटा। In order to reduce the alkaline effect, it is better to add some decaying organic matter such as compost or manure. The soil pH is also affected by the acid rain बेटा। acid rain भी इसको अफेक्ट करती है। And the use of fertilizers also. Acid rain as well as both use of fertilizers जो है, they are affecting the pH of the soil. Therefore beta, soil treatment is quite essential for proper growth of the plants in the particular soil which is related to the pH. So beta, thank you. Hope second part of this acid, bases and salts is clear to you. Subscribe, like and comment the channel just to encourage me to upload more and more videos beta. ठीक है? In case any problem you can contact me. Is that clear? So thank you. Have a nice day.